મગજની ધાર કાઢે, મગજ પર જે કાટ કાઢી ગયો છે એને આપણે ઓછો કરી શકીએ, કાઢી શકીએ અને આપણા મગજની ધાર કાઢી શકીએ તો કદાચ ખૂબ સારું કામ કરી શકીએ. હજી ઓલી સ્કૂલમાં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે મીણબત્તી સળગાવીએ એની અંદર વચ્ચે દોરી હોય, વાટ હોય ને, એ વાટનું કામ શું હોય છે? એ સળગે એટલે મીણબત્તી સળગે. એ સિવાય શું થાય? શું થાય? સળગાવે એટલે શું થાય? પોતાની જાતને સળગાવીને બીજાને પ્રકાશ. લેણે તો સાયકોલોજી કરતી બીજા પોતે સળગીને બીજાને પ્રકાશ કોમ્પ્લિકેટેડ. મેં વૈજ્ઞાનિક કારણ પૂછ્યું કે એ દોરીનો એ વાતનું કામ શું? મીણને પકડી રાખે, પછી મીણને ઓગાળે. દોરી ન હોય તો મીણબત્તીને મીણ સળગી શકે? એ જે દોરી છે એ ઓગળેલું મીણ છે, એ ઓગળેલું મીણ એ ઈજન છે. ઈજન ખબર પડે ને, જેનાથી કોઈ વસ્તુ ચાલે, પ્રગટે. એટલે એ મીણ જે ઓગળેલું હોય એ દોરીને, એટલે દોરી છે એને શોષી લે અને એ શોષણથી એટલે કે કેપિલરી એક્શન્સથી એ મીણ ઉપર ચડે દોરીમાં અને પછી એ સળગે. આ ખબર છે આપણને? કોઈ મીણબત્તી પ્રગટાવી આપણે બસ. હવે બાકસ હોય, બાકસ બંધ કરેલું બાકસ ઉપરથી નીચે ફેંકવું તો કેવી રીતે પડે? ઊભું પડશે, આડું પડશે, દૂર પડશે. સપોઝ આ બાકસ છે એને હું ઉપરથી આમ નીચે ફેંકું તો કેવી રીતે પડે? આડું પડશે, હવે એકદમ સીધું પડશે. ઘરે કરીને જોવાનું છે, કારણ કે તમને જે સર બતાવવાના છે ને આવા જ પ્રયોગો છે. બાકસ એ ઘરે તે ગોતવા નહીં જવું પડે, પણ આપણે એવું ક્યારેય કહ્યું નથી કે બાકસ ઉપરથી નાખીએ તો કેમ પડશે ખબર નથી, અને પછી બાકસ અડધું ખોલીને નાખજો તો કેમ પડે છે. કાલે એ પ્રયોગો કરીને અંદર ડિસ્કસ કરી તમારા ટીચરને કહેજો કે શું થયું. Is it interesting? Interesting way of to learn science with a strong concept. કે હેફેઝેલી એના કોઈ નિયમો શીખી ગયા. તમે જે નાળિયેર પાણી પીઓ છો સ્ટ્રોથી, એમાં જે પાણી ઉપર આવે છે ફૂંક લો, એ કેપિલરી એક્શન કહેવાય. પંપ શરૂ કરો, નીચેની ટાંકીમાંથી ઉપર પાણી ચડે એને કેપિલરી એક્શન કહેવાય. તો એવી જ રીતે મીણની જે વાટ હોય એ મીણને ઉપર ચડાવે પછી એ પ્રગટે. અચ્છા, બીજો એક પ્રયોગ આટલી જ વારમાં. મીણબત્તી સળગેલી છે, બરાબર, તમને પ્રકાશ આપે છે. એ દોરીને આવી રીતે કંઈ પણ કાતરથી અથવા કોઈ પણ ટોંગ્સ હોય એનાથી એ વાટ હોય એને આમ બંધ કરી દેજો. શું થશે? બંધ થઈ જશે ને? શું કરવાનું? મીણનો ઉપર તરફ જવાનો પ્રવાહ બંધ થઈ જશે. તમે એને અવરોધશો એટલે ઉપર મીણ નહીં ચડે તો પ્રગટશે. તમે ફૂંક નથી મારી એટલે બંધ ન થઈ ગયું, પણ એને જ્યાંથી જે વસ્તુ મળતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ. એટલે તમને ખબર છે કે દીવો જે તમે ઘરે પ્રગટાવો મંદિરમાં, એમાં જેટલું પણ ઘી જે ફૂટ્યું હોય ત્યાં સુધી એ દીવો પ્રગટે પછી જતો રહે, અથવા તો હવા આવે તો જતો રહે. there are many reasons for it. પણ એવું આપણે ક્યારે વિચાર્યું કે આની અંદર શું વિજ્ઞાન છે? Think for it. You need to use your brain. You should have this type of questions arising in your mind. Okay? આગળનું બધું સેશન સર શરૂ કરે. સર તૈયાર થઈ ગયા. Okay, fine, sir. अच्छा सुनो, आपका आंसर इसका है, नहीं तो आंसर इसका है? इसका आंसर है आपका, नहीं तो इसका आंसर? बताओ. His answer is for this. Sure? उठाओ उसको, उठाओ. पहले उठाओ, जल्दी उठाओ. अरे उठो यार. खतरनाक आदमी है यार. He is a scientist, big scientist. We get to this part. And I know your interest, your ambition that you want to become a scientist. Oh, engineer. Engineer wanted to be down into a scientist later. You wanted to be basically first engineer, like Abdul Kalam, and then he became a scientist. Like you, likewise you wanted to become. अच्छा, ये इसमें बना है तुम्हें. एक्चुअली क्या है, पुलिसमैन रहता है ना, उनको फैमिली रहती है, उनको मतलब वाइफ रहता है, बच्चा रहता है, तो बच्चों का बाप वही होता है जो काम
वहाँ तक चला जाता है पुलिस काम करने के लिए। कोई बॉम्ब लगा देता है, वो पुलिस 30, 40, 50 पुलिस को बॉम्ब रिमोट कंट्रोल से दबा के सबको मार देता है। जो बॉम्ब लगा के मार देता है वो पुलिसमैन क्या किया उसके लिए? क्या अपना अपना काम कर रहा है ना पुलिस आदमी, जानबूझ के पर्सनल उसको कुछ गिल्ट है क्या वो नक्सल्स की वजह उसको तो नहीं है, लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं वो लोग। गवर्नमेंट जो काम दिया उसको वो काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको मार देते हैं बम लगा के करके ना। तो उनका बाप मतलब बच्चा कितना रोता है, मेरा बाप मर गया बोल है ना। अगर बच्चों बाप नहीं तो फिर बच्चों को कितना जिंदगी भर परेशान रहता है, जो उनको बाकी पेरेंट्स से मिलता है उसको नहीं मिलता है ना। तो मैंने सोचा मेरा तरफ से कुछ करना है पुलिस बनाने के लिए, मतलब इसके लिए ये सेंसर सिस्टम बना दिया। तो ये क्या होता है, जैसे मतलब हमारा दोस्त कह रहा बम स्पेशलिस्ट रहता है, वो लोग आके वो बम को डिटेक्ट करके निकाल के उसको डीएक्टिवेट कर देगा, तो बाद में पुलिसमैन सेव हो जाएगा है ना। तो इतना अच्छा आइडिया अपना दोस्त के लिए बिग हैंड वंडरफुल वंडरफुल गुड थिंकिंग, इज डूइंग गुड थिंकिंग। ऐसा ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स है ना बहुत सारा चीज देखते। अच्छा ये चीज क्या है? ये रात को राजकोट में रास्ता पर भी देखा हमने। अच्छा है, नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था, हमारा हैदराबाद में एक मीटिंग में बताया, अरे तुम लोग एक बार हमारा गुजरात आओ, गुजरात आके देखो कितना हम लोग डेवलप किया, गुजरात कर रहा है। तो मैंने सोचा ये क्या बोल रहे, क्या डेवलपमेंट एक्स्ट्रा करता हो। लेकिन कल रात को मैंने 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा राजकोट घूमता देखो क्या डेवलप किया उसने। तो फिर इतना अच्छा नया चीज को देख लिया मैं, माय गॉड। ये भी था उसमें रास्ता पर रास्ता कैसे जा रहा है, तालीम अगर दिखाने के लिए वो लोग ये फिट किया सोलर इंडिकेटर्स, पूरा दिन में चार्ज हो जाती है, रात को फिर अपना चार्ज हो, लाइट ऑन है, रास्ता क्या टर्न कर रहा है, कितना एंगल पर टर्न हो रहा है, सब देखा है। जब आया अरे मोदी साहब क्यों बताया ये चीज, इसलिए बताया क्या डेवलपमेंट किया ना। आई आल्सो बिकेम फैन ऑफ यू नाउ because he did lot of things nice for us. This is the one last night I saw in ये देखा था मैं राजकोट में है ना। तो देखो हम लोग यूएस में इसको सब मतलब यूज करता था, लेकिन इधर इंडिया में राजकोट में भी अरे क्या बनाया राजकोट के लिए यार, वाह अच्छा। ये सब रोबोटिक्स के बारे में आजकल बच्चा, अरे यार ये तो बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसके बारे में कोई कमेंट करने वाला है? कोई स्टूडेंट, एनीबडी वांटेड टू कमेंट ऑन दिस? वोडाफोन कोई कमेंट करना चाहिए, कोई कमेंट करेंगे? सी एंड कमेंट ये देख के चित्र ऊपर काय कमेंट करबो तो क्यों है बोलबो है आ चित्र में तो उसको देख के कोई कुछ बोलने वाला चाहिए मुझे। अच्छा आपको दिमाग का भी काम करो यार, दिमाग का भी काम दे दो, सोचो। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस यू नीड टू थिंक माय डियर फ्रेंड। सब डायरेक्शन में बच्चों से देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा सुनो, कोई बोल रहे कि नहीं? मैं स्लाइड आगे चला जाऊं, मेरे पास बहुत सारे दिखाना है, इसीलिए बोल रहे तो बोलो, नहीं तो आगे चला जाए। अरे हम सब लोग दोस्त है यार, बोलने में क्यों सोचते हो? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा मैं ही बोल लूंगा है ना, बोल दे क्या? आप रेडी है? फिर आवाज बंद कर देना, अगर नहीं बोल रहा है तो फिर आवाज बंद कर देना, ठीक है? रेडी? इफ वी वर्क टुगेदर वी विन टुगेदर। हिंदी में क्या बोलते हैं आप बोल दो। इफ वी वर्क टुगेदर वी विन टुगेदर। अरे ये बर्ड जो बना है ना, ये नेचुरल बर्ड नहीं है, आर्टिफिशियल बर्ड है। इसके अंदर एक कैमरा है, उसके देखो नीचे सेलफोन कैमरा जैसा है, वो वीडियो कैमरा है। तो इसको किधर भी जाने को बोलेंगे ना उधर जाएगा फ्लाई करके। दो अपार्टमेंट में जो खिड़की पर जाके अंदर क्या हो रहा है देखो बोल के उसको बोल दिया तो भैया उधर ही जाएगा, उधर का वीडियो पूरा खींचेगा, हमको लैपटॉप में नीचे दे देगा। तो ये स्पाई बर्ड है, स्पाई बर्ड। लोगों को नहीं पता, वो लोग सोचते हैं अरे ये कितना अच्छा आवाज कर रहा है, उसको देखता रहेगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग देयर। अच्छा सुनो, हमारा घर में क्या है, मतलब हमारा ब्रश होता है, टूथब्रश। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पूरा फैमिली मेंबर 10-15 जो भी जितना करते हैं मतलब अपना ब्रश को क्या करते हैं एक ही टाइम में डालते हैं। तो अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या करता है आपको बस फैल जाता है। तो पूरा घर से दूसरा से तेज रहेगा, सब मतलब डेंटल प्रॉब्लम फैल जाता रहता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता रहता है। इसके लिए मैंने क्या सोचा, हर एक ब्रश हर एक आदमी अपना अपना स्टेरिलाइजर में स्टेरिलाइज कर ली, पानी में ड्रॉप डाल के प्लग में डाल के गर्म करके, सो स्टीम से अगर वो ब्रश को थोड़ा